مسلسل محنت سے معیشت کو استحکام ملا، تیز تر معاشی ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صنعتی ترقی اور پیداوار بڑھانے کے لیے آئندہ بجٹ میں مزید اقدامات کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کیا کہا، یہ جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے۔ اپڈیٹ کیجیے اظہر۔ جی، وزیراعظم شہباز شریف سے ملک بھر کے چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اعلیٰ قیادت کے وفود نے ملاقات کی ہے۔ وفد نے وزیراعظم کو آئندہ بجٹ اور ملک کی مجموعی معاشی ترقی کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی اس موقع پر پیش کی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مسلسل محنت سے معیشت کو استحکام ملا، تیز تر معاشی ترقی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتی ترقی اور پیداوار بڑھانے کے لیے آئندہ بجٹ میں مزید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیراعظم نے ایف پی آر کو 15 جون تک ٹیکس ریفنڈ کے تمام زیر التوا کیسز نپٹانے کی بھی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ برآمدات پر مبنی معاشی ترقی ہمارا مشن ہے اور اجتماعی کاوشوں سے اس مشن کو تکمیل کا یقینی بنائی جائے گی۔ اس موقع پر وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پالیسی ریٹ میں حالیہ اضافے کے باوجود ایکسپورٹ ری فائنینسنگ اسکیم کی شرح جون 2027 تک 4.5% برقرار رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برآمد کنندگان کی سہولت کے لیے بینکوں کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے۔ وزیراعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ کاروباری برادری کی سہولت کے لیے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کا مرکزی دفتر کراچی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور کاروباری برادری کی درخواست پر وزیراعظم کی گجرات میں پاسپورٹ کا دفتر کھولنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ ایس ایم ای سیکٹر کی ترقی کے لیے اصلاحات اور سہولیات کی فراہمی ہمارے معاشی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی سرمایہ کار جائنٹ وینچرز کے ذریعے الیکٹرک وہیکلز کی مقامی پیداوار کو فروغ دیں۔ اس موقع پر وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اظہر فاروق۔ کبھی نہیں کہا فارم 47 پر سلیکٹ کرا دو، حکومت کے لیے کسی سے حمایت نہیں مانگی۔ گلگت کے عوام فارم 45 کا بندوبست کریں، فارم 47 والوں کا میں خود بندوبست کر لوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ضلع شکر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا تمام جماعتیں گوادر، کراچی اور گلگت کو اسلام آباد سے چلانا چاہتی ہیں، کہتے ہیں وفاق کنگال ہو گیا۔ بھائی کنگال ہو گئے ہو تو آزاد کشمیر اور گلگت کی وزارت ختم کرو۔ آئینی ترمیم ہوئی تو گلگت کے الیکشن پاکستان کے عام انتخابات کے ساتھ کرانے کی تجویز دیں گے۔ نون لیگ کے صدر میاں نواز شریف کل گلگت بلتستان کا دورہ کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے این او سی جاری کر دیا۔ میڈیا کوارڈینیٹر الیکشن کمیشن نے بتایا نواز شریف کو دورہ گلگت بلتستان کے دوران ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ہے۔ نون لیگ کے مقامی رہنما نے سابق وزیر اعظم کے دورے کی درخواست دی تھی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو این ایف سی ایوارڈ میں حصہ دیا جائے، نون لیگ کے رہنما سعد رفیق کا اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، ہماری حکومت نہ ہٹائی جاتی تو ملک میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوتی۔ اگر توجہ دی جائے سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انفراسٹرکچر چاہیے، روڈ نیٹ ورک چاہیے، ٹوریزم پر فوکس چاہیے، کاروبار کا پہیہ چلے گا تو لوگ پیسہ لے کے یہاں آئیں گے، نوجوانوں کو روزگار ملے گا، ہر شخص تک اس کے فائدے پہنچیں گے۔ این ایف سی کے اندر شیئر ملنا چاہیے گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد جموں کشمیر کو بھی۔ پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ حق پنجاب کا ہے، اگر یہ خیبر پختونخوا کا ہے، بلوچستان اور سندھ کا ہے، تو ان دونوں خطوں کے بغیر پاکستان نامکمل رہتا ہے، ہم مکمل نہیں ہو سکتے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی اسکردو میں سیاسی مصروفیات، مختلف مقامات پر انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اسکردو پہنچنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں نے بیرسٹر گوہر کا استقبال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اسکردو کے بعد گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں کا بھی دورہ کریں گے۔ چلاس میں فیری میڈوز روڈ پر سیاحوں کی جیپ گہری کھائی میں جا گری، حادثے میں ڈرائیور سمیت 7 افراد جاں بحق۔ پولیس حکام کے مطابق جاں بحق 2 سیاحوں کا تعلق پشاور جبکہ 4 کا پنجاب سے ہے۔ ڈرائیور کی شناخت ضیاء اللہ کے نام سے ہوئی۔ جیپ فیری میڈوز سے واپس شاہراہ قراقرم آ رہی تھی کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو گئی۔ جائے حادثہ انتہائی گہری کھائی میں واقع ہونے کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ ڈرائیور کی لاش نکال لی گئی، دیگر افراد کی تلاش جاری ہے۔
कोकेन डीलर अनमोल पिंकी कराची की जेल में बंद, लेकिन मंशियात का गंदा धंधा बंद ना हो सका। जराए का दावा है बंगलों रेस्टोरेंट में पापड़ के पैकेट्स में कोकेन सप्लाई की जा रही है। ARY न्यूज़ कोकेन सप्लायर और ग्राहकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने ले आया। अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी के बावजूद कराची में नशे की सप्लाई जारी। चिप्स के पैकेट्स में कोकेन सप्लाई होने लगी। चिप्स के पैकेट से निकलने वाली मंशियात की डिबिया पर कोई मैडम पिंकी और नाम ही काफी लिखा है। जराए के मुताबिक बंगलों और रेस्टोरेंट्स तक बच्चों के पापड़ और चिप्स के पैकेट्स के जरिए कोकेन सप्लाई की जा रही है। ARY न्यूज़ कोकेन सप्लायर और ग्राहकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने ले आया। आपको बहुत सारी चिप्स वगैरह के पैकेट देगा, उसके अंदर जो है ना ये वाला पैकेट जो है इस पैकेट के अंदर है, ठीक है सामान। ओके, ये राइडर का नंबर है, लड़के के पास से आपका पार्सल लेके निकल गया, उसको ना एग्जैक्ट लोकेशन ये ना करंट लो। ऑडियो रिकॉर्डिंग में सप्लायर ग्राहक को पैसे ट्रांसफर करने का तरीका भी बता रहा है। जराए के मुताबिक पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने माली लेन देन के लिए मजीद ऑनलाइन अकाउंट्स भी जारी कर दिए। बॉस आपको ये बैंक अकाउंट नंबर सेंड किया, इस बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दें। जो सबसे सिंपल ये अकाउंट है, आप एप्लीकेशन में लिखेंगे ना वन जिप अकाउंट, वन जिप सामने शो हो जाएगा। अनमोल पिंकी को 22 मई को जेल कस्टडी किया गया था, जिसके बाद से अब तक पुलिस की जानिब से मुनज़्ज़म गैंग के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आ सकी। जेकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर जलाए गए 121 घरों के मुतासिरीन शदीद गर्मी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हुकूमती यकीन दहानियों के बावजूद घरों की बहाली का काम शुरू ना हो सका। मजीद जानते हैं जेकबाबाद से हमारे नुमाइंदे मूसा बलोच से। बताइएगा मूसा। मौजूद हूँ गांव मोहम्मद सिद्दीक आराई में। बदकिस्मती से 5 मई को इस गांव में पसंद की शादी के तनाजे पर हमला करके जलाया गया। दर्जनों घर नजरे आतिश हो गए। कीमती सामान, घर और उनकी जिंदगी की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। हुकूमती नुमाइंदे आए, सरकारी अफसरान आए, मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें दोबारा घर तामीर करके देने की यकीन दहानियां कराई। वाक़े को 25 रोज गुजर जाने के बावजूद आज भी उन घरों से राख उड़ रही है। आप देख सकते हैं कि ये घरों के अंदरूनी मनाजिर हैं। मुतासरीन दरबदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे और हुकूमत अपने किए हुए वायदे पूरे करके उन्हें दोबारा घर तामीर करके दें, ताकि वो अपने खानदान, अपने अहले खाना से दोबारा इज्जत से जिंदगी बसर कर सकें। जी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ PTI की दरखास्त खारिज कर दी। तफसीलात क्या हैं, राजा मोहसिन एजाज से जानते हैं। अपडेट कीजिए राजा मोहसिन। जी बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी, जो शिकायत थी, उन्हें खारिज कर दिया गया है। इस सिलसिले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से बाकायदा मरासला लिखकर उस वक्त के अपोजिशन लीडर उमर अयूब को फैसले से भी आगाह कर दिया गया है। इस मरासले में ये लिखा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक आपकी शिकायत का 11 फरवरी के इजलास में जायजा लिया और जायजा लेने के बाद आपकी जो शिकायत है उन्हें खारिज किया जाता है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली और दीगर इकदामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर की गई थी, जिन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जिन पर गौर करने के बाद उन्हें खारिज कर दिया है। अपडेट कर इल्ज़ाम है 26 नवंबर के एहतजाज का पैगाम आवाम तक पहुंचाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर अलीमा खानम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकाम जो कुछ भी कर रहे हैं ये ज़्यादा देर पायदार नहीं रहेगा। केस जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए अदालत से जल्द तारीख मांगी। मंगल को KP काबीना और MPs अडियाला जेल आएंगे। सुहेल अफरीदी ने कहा था कि उनकी कैबिनेट के मेंबर्स और MPA सारे आएंगे अडियाला, क्योंकि हम इन्हीं को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रेशर डालें, इमरान खान का इलाज हो, इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म हो। ये इमरान खान को बिल्कुल आइसोलेट करके बैठे में और हम एहतजाज बढ़ाते जाएंगे जब तक ये इमरान खान का इलाज नहीं करते हैं और जब तक ये इमरान खान को कैद तन्हाई से नहीं निकालते। कराची वाले हो जाएं होशियार। शाहराह फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी की तो मोटरसाइकिल वालों को 2500, गाड़ी वालों को 5000 और कमर्शियल गाड़ियों को 7500 का चालान होगा। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं फेसलेस चालान का आज से आगाज कर दिया गया है। 4 रोया सड़क है, जो राइट वाली 2 फास्ट मूविंग लेन्स हैं, उसके अंदर कार, जीप और डबल केबिन या फास्ट मूविंग जो भी व्हीकल्स हैं वो चल सकती हैं अपनी स्पीड पर।
सिमिलरली जो लेफ्ट वाली जो स्लो मूविंग ट्रैक्स हैं उस पे ऑल कमर्शियल व्हीकल्स एंड मोटर बाइक्स ये चल सकते हैं। तो अगर कोई मोटर बाइक या कोई कमर्शियल व्हीकल जिसमें रिक्शा भी हैं दूसरे भी हैं, अगर वो फास्ट ट्रैक पे आते हैं तो उनको टिकट होगा। सिमिलरली अगर कोई कार जो है अपने ट्रैक में स्लो चल रही है या स्लो मूविंग ट्रैक में आके चल रही है मुसलसल, तो उनको भी टिकट इशू होगा। मोटर बाइक का 2500 रुपया है, कार का 5000 रुपया है और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनका 7500 रुपया है। जमात इस्लामी कराची के कायम मकाम अमीर ने कराची को पानी की फराहमी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सैफुद्दीन एडवोकेट ने कहा 3 दिन में पानी फराहम ना किया गया तो मेयर मुर्तज़ा वहाब के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। ये उनको अल्टीमेटम है कि अगर 3 दिन में पानी की सप्लाई बेहतर नहीं होती तो फिर हम पूरी कराची के अंदर भी मुजाहरे करने शुरू कर देंगे। और मुर्तज़ा वहाब साहब जो वाटर बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके दफ्तर भी फिर एक बड़ा मुजाहरा हम मुनक्किद करेंगे। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक कराची को ऑलरेडी 50% पानी मिलता है और इस वक्त जो धाबेजी की सूरत हाल है उसकी वजह से और 25% कम हो गया है। तो भाई ये तो 75% पानी कम मिल रहा है। बकरीद पर सूरत हाल ये थी कि लोग मारे मारे फिर रहे थे, उनको टैंकर के जरिए भी पानी नहीं मिल रहा था और 2500 का टैंकर लोगों को 10 और 12,000 के अंदर भी दस्तयाब नहीं था। लोग रो रहे थे, लोग तड़प रहे थे। ऐसी सूरत हाल में मुर्तज़ा वहाब साहब ने लोगों के जख्मों पर फाया रखने के बजाय, लोगों से माफी मांगने के बजाय ये कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है कि आधे शहर को पानी नहीं मिल रहा, कि अगर आधे शहर को पानी नहीं मिलता तो कराची में दंगा हो रहा होता। और के इलेक्ट्रिक और वाटर कॉरपोरेशन की नाअहली ने कराची को पानी से महरूम कर दिया। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के बाद हब पंपिंग स्टेशन पर भी केबल फॉल्ट आ गया है। राफे हुसैन से इस बारे में मजीद जानते हैं। राफे, अब इस पे क्या प्रॉब्लम आ गया? 24 घंटे के दौरान ये दूसरा के इलेक्ट्रिक की जानिब से बड़ा फॉल्ट आया है और अब धाबेची के बाद हब पंपिंग स्टेशन पर भी ये केबल फॉल्ट हुआ है और के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में ये फॉल्ट आया है जिसकी वजह से पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल हो गई है और शहर को योमिया 85 मिलियन गैलन पानी की फरहमी मुतासर हो गई है। हब से जो है वो पूरे शहर को ही पानी फराहम किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके हैं वो ज़िला गरबी और वस्ती के इलाके हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। पंपिंग स्टेशन को बिजली फराहम करने वाली मेन केबल में ये फॉल्ट हुआ है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से फॉल्ट की मरम्मत और बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया है कि ये फॉल्ट कितने घंटों में। ठीक है राफे, अपडेट करे थे आप, शुक्रिया। कराची में फुटबॉल लवर्स की तैयारियां उरूज पर। फीफा वर्ल्ड कप काउंटडाउन शुरू। स्टार खिलाड़ियों और टीमों की जर्सी तेजी से फरोख्त होने लगी। शर्ट नंबर 7 भी तवज्जो का मरकज बन गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन। फीफा वर्ल्ड कप की गूंज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची तक आ पहुंची। आलमी मेले का जुनून बढ़ने लगा। नामवर फुटबॉलर्स और टीमों की जर्सी तेजी से फरोख्त होने लगी है। हर खरीदार के हाथ में एक जर्सी और दिल में वर्ल्ड कप का ख्वाब दिखाई देता है। मोहम्मद सलाह हो या फिर हकीमी, नेमार हो या फिर मैसी, और आखिर में आती है जर्सी नंबर 7 जो कि है रोनाल्डो के नाम। ये सब की सब जर्सीज जो हैं डिमांड में हैं। फुटबॉल गेम के मतवालों का एक ही दावा है, दुआएं पाकिस्तान में होंगी और जीत 7 समंदर पार उनकी टीम को मिलेगी। पुर्तगाल को तो कोई नहीं जानता, हम CR7 को ही जानते हैं, हम उसके फैन हैं। वर्ल्ड कप वो जीत कर दिखाएगा। डबल जर्सी खरीदे हम लोग ने, एक ब्लू एक येलो। इंशाल्लाह इस चक्कर में ब्राजील ही जीतेगा, हम मुतमईन हो गए। जिस टाइम भी मैच हो, 2 बजे 3 बजे 5 बजे सुबह में मैच होंगे तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप देखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप को जो एंजॉय करना है तो एक क्रेज है हम लोग का, फुटबॉल जैसा गेम है ही नहीं। दुकानदार के मुताबिक गुज़िश्ता एडिशन के बरस इस मर्तबा जर्सी की डिमांड ज्यादा है। स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, पोर्चुगल और ब्राजील ये बहुत ही ज्यादा जो है सेल हो रही है और फैंस इसको बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज की जर्सी हमारे पास बहुत सारी है, उसमें जो मैन है सऊदी अरब है जिन्होंने लास्ट टाइम अर्जेंटीना को अपसेट दिया था। वर्ल्ड कप के मैदान हजारों मील दूर सजने के करीब हैं, लेकिन इन मैदानों की धड़कन कराची के बाजारों में आज ही सुनाई दे रही है। इस दुकान से सिर्फ फुटबॉल जर्सीज खरीदी नहीं जा रही, बल्कि शायकीन अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ी से मोहब्बत का इजहार भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन याकूब के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची।